خواتین و حضرات، لاؤڈ اسپیکر کی آج کی ایپیسوڈ ایک خاص شخصیت، ایک خاص ہستی سے منسوب ہے۔ میں صرف ایک ایپیسوڈ نہیں، میں ان کے لیے 1000 ایپیسوڈز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں ان کے لیے اتنی محبت، اتنی عقیدت ہے، مگر فی الحال اس ہفتے کی 2 ایپیسوڈز انہی کے نام ہوں گی، انہی کو ایک خراج ادا کروں گا۔ میں جو ایک معمولی پاکستانی ہوں، مگر اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہستی جن کا ذکر میں آج کروں گا وہ انسانیت کا سرمایہ تھی۔ انسانیت کی قومیت نہیں ہوتی، انسانیت کا پاسپورٹ نہیں ہوتا، انسانیت اپنا وطن اس پورے کرۂ ارض کو، اس پوری کائنات کو سمجھتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج میں جس گلوکارہ کا، جس فنکارہ کا، جس عظیم عورت کا ذکر کرنے لگا ہوں، وہ اور کوئی نہیں، آپ کی اور ہماری اور ہم سب کی بے انتہا پسندیدہ گلوکارہ محترمہ آشا بھونسلے ہیں۔ وہ چلی گئیں، لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ آواز خاموش ہو گئی۔ وہ آواز اور ایسی کئی اور آوازیں کیا کبھی خاموش ہو جاتی ہیں؟ مگر جب وہ گلے خاموش ہو جاتے ہیں، جہاں سے وہ نور پھوٹتا ہے، تو پھر وہ گونج قائم ہوتی ہے۔ وہ گونج اور تیز اور اونچی اور تیکھی ہو جاتی ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت بڑے بڑے مخیر لوگ اپنے پیسے سے صدقہ جاریہ کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے شاعر اپنے کلام سے ایسی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں جو کہ زمانوں تک یاد رکھی جاتی ہیں۔ ادیبوں کا بھی یہی معاملہ ہے، سائنسدانوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر طبقے کے لوگ جو انسانیت کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ ان کا وہ ترکہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح فنکار اور گلوکار اپنے گلے کے وہ معجزے جو ہمارے آپ کے لیے، ہماری دل بستگی کے لیے، ہماری محبتوں کو تقویت دینے اور سہارا دینے کے لیے، ہمارے دکھوں کو آدھا کرنے کے لیے، ہمیں زندگی کی اس انتہائی کٹھن اور خارزہ گزرگاہ سے گزر جانے کے لیے جو ہمت دیتے ہیں اپنے سروں سے، اپنے گیتوں سے، وہ ان کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت وطنیت کا نعرہ لگا کے مجھے کہیں گے، اے فلاں ڈاکٹر عمر عادل، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایک بھارتی گلوکارہ کا ذکر کر رہا ہے؟ میرا ان کو صرف ایک بات کہنی ہے، مجھے قطعاً شرم نہیں آتی۔ شرم آپ کریں، اس لیے کہ آپ کو حیا ہونی چاہیے کہ یہ سارے معجزے تخلیق کے اس خالق کے ہیں جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ میں کسے پسند کروں، کس سے محبت کروں اور کس کی عزت کروں؟ میرے لیے عزت اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام تعریفوں کا حقدار ہے، اور جہاں جہاں اس نے اپنے ازلی نور کی ایک ضیاء یا کسی کے رخ میں یا کسی کے گلے میں یا کسی کے ماتھے میں یا کسی کے ذہن میں یا کسی کے ہاتھ میں یا دل میں دمکا دی، میرے لیے وہی اس نور ازل کا مظہر بن گیا، اور مجھے اسی میں اپنا خدا روزانہ نظر آتا ہے۔ اور جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو جو پہلا کلمہ ہمارے لبوں پہ آتا ہے وہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین کیجئے، کئی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دفعہ میں نے آشا بھونسلے کی آواز، ان کا سر، ان کے گیت سن کے سبحان اللہ کہا ہوگا۔ یہ شاید میں نے کسی اور ممبر پہ بیٹھے ہوئے صاحب کی بہت زیادہ تیز اور اشتعال انگیز تقریر سن کے نہیں کہا ہوگا۔ وہاں تو اکثر میں استغفر اللہ یا نعوذ باللہ کہتا ہوں، مگر یہاں نہیں۔ اب اس جملے کو بھی آپ میرے خلاف استعمال کیجئے، میں بھی اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہوں، میرا محافظ وہی ہے جس کو حاضر و ناظر جان کے میں یہ سب کہتا ہوں۔ خیر چھوڑیے یہ سارا قصہ، آئیے میں کچھ اپنی ذاتی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میری اور آشا بھونسلے صاحبہ کی ملاقات کی ہیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات مجھے اچھی طرح یاد ہے، 1999 میں ہوئی، 1989 میں ہوئی، اور یہ وقت وہ تھا کہ یہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 35 سال پرانی بات ہے۔ میں بھی بہت جوان تھا اور وہ بھی بہت بہت زیادہ جوان اور باہمت تھیں۔ میرے خیال میں منگیشکر سسٹرز میں ایک خاص خوبی ہے، وہ سب بے انتہا زیادہ عمدہ زندگی گزارتی ہیں، بہت ڈسپلن زندگی گزارتی ہیں، بہت محنت کرتی ہیں، بہت عبادت کرتی ہیں، کھانا بہت اچھا کھاتی ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتی، لہٰذا ان کی عمریں
90 से ज़्यादा रहती हैं। मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दूँ, आप एक मंगेशकर सिस्टर को नहीं जानते। आपको ये शायद पता है कि लता बाई जी सबसे बड़ी थीं दीनानाथ मंगेशकर साहब की औलाद में से। खुदा ताला लता बाई जैसी बेटी हर इंसान को दे, मगर जिन साहब को अल्लाह ताला ने ये बेटी अता की, उनके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा तोहफा है खुदावंद का। क्योंकि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर खुद एक गायक थे, क्लासिकल गायक थे, एक स्टेज आर्टिस्ट थे। वो नहीं जानते थे कि ये छोटी-छोटी 4 बच्चियाँ और उनका सबसे छोटा भाई जो उनके घर के आंगन में खेलते हैं, ये आगे जाके संगीत की दुनिया में, फन की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में, स्टेज की दुनिया में कौन सा तहलका है जो नहीं मचाएंगे और मेरा नाम रोशन नहीं करेंगे। अफसोस सिर्फ ये है कि बहुत छोटी सी उम्र में इस पूरे खानवादे को, इन बच्चों को यतीम होना पड़ा। और जाहिर है कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर बहुत थोड़े अरसे के लिए अपनी बेटियों और अपने बेटे को तमाम दर्स दे सके मौसीकी के अलूम और रमूज का। मगर एक चीज़ है, वो खून जो उनकी रगों में दौड़ता है, वो जेनेटिक्स की विरासत जो उनके हर बॉडी के सेल में मौजूद थी, मेरे ख्याल में वो काफ़ी थी कि वो आगे चल के अपने बाप से सीखे हुए एक एक लफ्ज़ की दास्तान बनाएंगे, और दास्तान भी वो जो कि हज़ार रातों पे मुहित हो और ख़त्म ना हो। मैं अर्ज़ कर रहा था कि लता जी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं, मगर उनके बाद एक खातून ऐसी हैं जो कि आशा जी की भी बहन है, मगर आप लोग उन्हें बहुत कम जानते हैं। उनका नाम है मीना खाडिकर। मीना खाडिकर को कम लोग इसलिए जानते हैं कि उन्होंने गायकी में जो अपना रास्ता अपनाया, वो ज़रा मुख्तसर भी था, वो सफ़र भी मुख्तसर था बाहर तौर, मगर मराठी सिनेमा के लिए ज़्यादा और हिंदी सिनेमा के लिए कम था। जहाँ तक मीना जी का ताल्लुक है, ये आशा जी की बड़ी बहन थीं, और मुझे एक गीत यहाँ पे याद आता है जहाँ पे आशा जी, मीना जी और लता जी तीनों की आवाज़ों को शामिल किया गया। कोई बात नहीं, ये बातें वो हैं जो शायद सिर्फ डॉक्टर उमर आदिल आपको बताए, और इधर-उधर जो लोग वीलॉग कर रहे हैं आशा जी पे, उनको इन बातों का इदराक तक ना हो। आप जानते हैं कि एक बहुत मशहूर फ़िल्म बन रही थी, जिसे महबूब खां साहब बना रहे थे। उस फ़िल्म का नाम था मदर इंडिया। मदर इंडिया 2 दफ़ा बन चुकी है। एक दफ़ा पहले बनी थी, मगर उसका नाम तब मदर इंडिया नहीं था, उसका नाम था औरत। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म थी, जिसमें महबूब खां साहब ने जिस खातून को मदर इंडिया का रोल दिया था, उनका नाम था सरदार बाई या सरदार अख्तर। सरदार अख्तर महबूब खां की हकीकी ज़िंदगी में भी बेगम थीं। और ये बात मैं बहुत एज़ाज़ से कहता हूँ कि जैसी ज़रख़ेज़ी मेरे शहर लाहौर ने दिखाई है फ़नकारों के मामले में, गुलकारों के मामलों में और बहुत-बहुत ज़हीन लोगों के मामले में, वैसी ज़रख़ेज़ी शायद पूरे कुर्राए अर्ज़ पे किसी और शहर में नज़र नहीं आती। सरदार अख्तर का ताल्लुक भी लाहौर से था, और जब तक ये लाहौर में थीं, ये मशहूर थीं दारी के नाम से। और ये 2 बहनें थीं, इनकी एक और बहन थी जिनका नाम था बहार अख्तर, और वो मशहूर थीं बहारों के नाम से। बॉम्बे के 2 बहुत बड़े फ़िल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो ओनर्स, एक थे कारदार साहब, ए.आर. कारदार, अब्दुल रशीद कारदार। उनकी बेगम कौन बनी? बहार अख्तर। और दूसरे थे महबूब खां, महबूब फ़िल्म्स के रूह रवां, महबूब स्टूडियो के मालिक, और उनकी बेगम कौन बनी? लाहौर की दारी सरदार अख्तर। तो खैर, वो फ़िल्म इतनी कामयाब थी औरत कि उन्होंने सोचा कि अब रंगीन का ज़माना है, तो इसी फ़िल्म को दोबारा बनाया जाए। और आप सब जानते हैं कि इस फ़िल्म के लिए भी जो कुर्रा फ़ाल मेन रोल के लिए, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके लिए किसके नाम निकला? जद्दन बाई की बेटी नरगिस बेगम के नाम। और नरगिस ने मदर इंडिया का वो रोल अदा किया जो आज भी उनके करियर और इंडियन सिनेमा का एक लैंडमार्क, एक माइलस्टोन है। तो उसका एक गाना था जिसमें बेवगी के बाद नरगिस खेतों में हल चलाती हैं, और उनके साथ उनके 2 यतीम बेटे भी हैं। आपको याद होगा कि इस फ़िल्म में इन बेटों का किरदार जब वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर किसने अदा किया था? सुनील दत्त ने, जो बहुत खिलंडरे थे, और साथ थे कौन? राजेंद्र कुमार। ये भी याद है आपको
کہ اسی فلم کی ایک شوٹنگ کے دوران شعلوں سے سنیل دت نے اپنی فلمی ماں نرگس کو بچایا، اور ایسے بچایا کہ ان کا دل جیت لیا۔ خواتین حضرات، جب فنکار کوئی رول ادا کر رہے ہوتے ہیں تو تب اپنی اصل زندگی سے نہیں ہٹ جاتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کسی فلم میں ماں بنی ہیں تو آپ کا جو اداکار بیٹا بنا ہوا ہے وہ آپ کو ماں ہی سمجھے۔ محبت کا چلن وہاں بھی قائم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹیک کے دوران آپ کردار میں ہوتے ہیں، لیکن ٹیک سے آف آپ اپنے حقیقی انسانی قالب میں ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کے بعد سنیل دت اور نرگس کی آپس میں شادی ہو گئی، جو ان کی زندگی کے آخری دنوں تک رہی۔ اب دیکھ لیجئے کہ جب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں آشا جی کا، تو میں اتنی چیزیں یاد کر رہا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ خواتین حضرات، فلم مدر انڈیا کا ایک گانا میں نے ذکر کیا، اس کو لیڈ میں گانا تھا نرگس بیگم نے، اور وہ ایک پورا حل اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہی تھی۔ میں تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور ساتھ دونوں بچے مدد کر رہے تھے۔ گانے کے بول کچھ یوں تھے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں جینا ہی پڑے گا، یہ جیون اگر زہر ہے تو اسے پینا ہی پڑے گا۔ کچھ اسی طرح کا مفہوم تھا، آپ خود چیک کر لیجئے گا، میرا کوئی ایک آدھ لفظ ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ فلم کے موسیقار نے کہا کہ ہمیں اس میں دونوں بچوں کی آوازوں کے لیے بھی ایسی آوازیں چاہیے جن میں معصومیت ہو، نہ صرف معصومیت ہو بلکہ ایسی آواز ہو جو اپنی ماں کی پلے بیک سنگر کی آواز سے ملتی جلتی اور مشابہت رکھتی ہو، تاکہ صاف یہ لگے کہ اسی ماں کے یہ بچے ہیں۔ خواتین و حضرات، نقطہ بے انتہا اہم ہے۔ آپ سوچئے کہ ماں کی آواز تو انتہائی بھاری دبیز قسم کی کلاسیکل گائیکی کر رہی ہو، اور بچے پیچھے انتہائی پاپ سنگنگ کر رہے ہوں، تو یہ ایک بات کچھ مناسب نہیں تھی۔ محبوب خان صاحب نے اس فلم کے لیے انتخاب تو ہماری پلے بیک سنگر کا کر لیا تھا، جو کہ کوئی اور نہیں تھیں بلکہ لتا بائی منگیشکر تھیں۔ تو اصل مسئلہ یہ پڑا کہ اب بچوں کی آوازیں کون بنائی جائے، کس پلے بیک سنگر کو ان دو بچوں کی آوازوں کے لیے منتخب کیا جائے۔ زیادہ دور نہیں دیکھنا پڑا، انہوں نے کہا کہ منگیشکر گھرانے میں دو اور آوازیں ایسی ہیں جو بالکل ایسے لگے گا کہ وہی خون دمک رہا ہے، وہی روشنی، وہی نور پھوٹ رہا ہے جو لتا جی کی آواز میں سے پھوٹتا ہے۔ پھر اس میں ایسا ہوا کہ جو بچہ راجندر کمار صاحب کا بچپن کا رول کر رہا تھا، اس کے لیے مینا منگیشکر کی آواز لی گئی، اور وہ بچہ جو کہ سنیل دت کے بچپن کا رول کر رہا تھا، اس کے لیے اوشا منگیشکر کی آواز استعمال کی گئی، جو کہ لتا جی کی چھوٹی بہن تھی، اور یہ آشا جی سے عین فوراً چھوٹی ہیں اور ردھیا ناتھ منگیشکر سے ایک نمبر پہلے پہ ہیں۔ خواتین حضرات، میں یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ وہ واحد فلم ہے جس میں لتا جی کے ساتھ اوشا منگیشکر اور مینا منگیشکر دونوں شامل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اوشا منگیشکر کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی وہ ایک گانا ہے جو انہوں نے اپنی بہن لتا منگیشکر کے ساتھ گایا، اور یہ ایک ڈانس نمبر ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا، اور اگر نہیں یاد تو آج یاد کر لیجئے۔ وہ گانا بہت مشہور ہے جو لتا جی نے اور اوشا منگیشکر نے ساتھ گایا، اپلم چپلم۔ سنا ہوگا نا آپ نے، اگر نہیں سنا تو آج سنیے، کس قدر عمدہ گانا ہے، اور بڑے ہی میرے خیال میں بڑی ضرورت کی بات ہے کہ اوشا جی نے اتنا اچھا گیت اپنی بہن کے ساتھ گایا۔ اوشا جی کی ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ منگیشکر سسٹرز میں سے دو نے شادی نہیں کی، ایک لتا جی نے نہیں کی اور ایک اوشا جی نے نہیں کی، اور دو نے شادی کی، بلکہ آشا جی نے تو 2 بار شادی کی۔ ان کی شادی کا تذکرہ جب میں یہاں کرتا ہوں تو ایک بات بتاتا ہوں، 16 سال کی عمر کچی عمر ہوتی ہے۔ بہت سارے اسباب تھے جن کا ذکر مجھ سے آشا جی نے کیا، مگر میں یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے سیکرٹری، جن کی عمر 31 سال تھی اور خاصے گھاگ آدمی تھے، ان کا نام تھا گنپت راؤ بھونسلے، ان کے ساتھ گھر سے بھاگ کے شادی کی۔ شادی کامیاب نہیں تھی۔ گنپت راؤ کو یہ پتا تھا کہ آگے چل کے آشا میں وہ خوبیاں ہیں کہ وہ بہت کما کے ان کو دے گی اور ان کی زندگی سفل ہو جائے گی۔ آشا جی نے اس شادی کے اندر بہت زیادہ مشکلات سہیں، مگر جو اصل مشکل سہی وہ یہ تھی کہ ان کا تعلق اپنے خاندان، اپنے پریوار سے کٹ گیا۔
लता जी उनसे नाराज़ थीं इसलिए कि उनका ख़्याल था कि उन्होंने यह गलत कदम उठाया है, और वैसे भी भोंसले साहब उन्हें वापस अपने घर नहीं जाने देते थे, अपनी माँ से और बहन-भाइयों से मिलने नहीं देते थे। बहरतौल जब बस शादी का इख्तिताम हुआ तो 2 छोटे बच्चों को साथ लिए हुए और एक बच्चे को अपने पेट में लिए हुए, जो भी पैदा नहीं हुआ था, वो वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं दोबारा बहक गया हूँ, तो दोबारा हम फिर वापस आते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो मुलाकात मेरी आशा जी से हुई, वो एक अजीब मुलाकात थी। पहली बात तो ये है कि मुझे बार-बार सिर्फ़ सिर्फ़ अपना रब याद आता था, और मैं एक दुआ करता था कि या अल्लाह, जैसा करम तूने इस औरत पे किया हुआ है, जैसी इज़्ज़त, जैसी सलाहियत इसको दी हुई है, इसके सदक़े में परवरदिगार अपने ख़ज़ानों से कोई एक टुकड़ा मेरी झोली में भी डाल। और ये हमेशा वो दुआ है जो करनी चाहिए उन लोगों को देखकर कि जिनको मेरे परवरदिगार ने नवाज़ा हो। उस नवाज़िश से हसद ना करें, उसके वसीले से सदका माँगें, अपना हिस्सा माँगें कुदरत के ख़ज़ानों से। और मामला यूँ है कि कुदरत के ख़ज़ाने कभी ना मिटने वाले, कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, और उनसे सिलसिला फैज़ जारी रहता है। उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है कि आशा जी एक बिल्कुल नए अवतार में मौजूद थीं। मैं नया अवतार इसलिए कहता हूँ कि जहाँ तक मंगेशकर सिस्टर्स का ताल्लुक है, ये अमूमन सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पहनती हैं। बहुत हुआ पतला-सा बनारसी बॉर्डर लगा होगा या मद्रासी बॉर्डर लगा होगा। ये सब फ़ॉलो करती थीं लता जी के अटायर को, और लता जी का जो इमेज था, वो था द प्योरिटी गॉडेस इन व्हाइट। वो तकद्दुस से भरी हुई एक खातून थीं, जो हमेशा सफ़ेद साड़ी में खुद को लपेटे रहती थीं, और सादगी उनकी ज़िंदगी और उनके इमेज का एक बहुत बड़ा अंसर था। बहुत अरसे तक आशा जी ने भी सफ़ेद साड़ियाँ पहने रखीं। उषा जी की जो कभी शादी नहीं हुई, तो वो भी सफ़ेद साड़ियाँ अपनी बड़ी बहन की तरह पहनती। मीना जी थोड़ी-सी बदल गई थी क्योंकि उन्होंने शादी की थी, और खाड़ेकर साहब से शादी के बाद अपना ना सिर्फ़ उन्होंने सरनेम चेंज कर लिया, बल्कि अपना पहनावा भी चेंज कर लिया। उस दिन जब मेरी मुलाकात लंदन में आशा भोंसले जी से हुई, तो आशा जी ने फुशिया कलर की, हॉट पिंक या मैजेंटा कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, गले में एक सोने का हार था, जो बहुत खूबसूरत ना सही लेकिन था सही। इसके हाथ में उन्होंने अपना एक पर्ल्स की चूड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ लंबी-लंबी ग्रेजुएटेड पर्ल्स की लड़ियाँ थीं, और वो एक ख़ास वक़्त के साथ उसको हिला के इधर से उधर करती थीं, तो ऐसे लगता था कि जैसे उनकी कलाई महवे रक़्स है। कुछ हीरे भी पहने हुए थे, मेकअप भी किया हुआ था, बाल बहुत अच्छे बने हुए थे, और 2 बड़े-बड़े फूल यहाँ पे लगाए हुए थे। मेरा पहला सवाल ये था, और बड़ी इस पे वो चमक उठी एकदम से। मैंने कहा, आशा जी, आपके गाने का अंदाज़, आपकी आवाज़ लगाने का अंदाज़, आपका हर भाव, हर अंग आपका अपना है, यूनिक है, उस पे किसी की छाप नहीं है, ना आपकी बहन की, ना किसी और गुलकारा की। मगर आज आपकी तैयारी पे जो बहुत ज़्यादा छाप गहरी नज़र आ रही है मुझे, वो किसी और की नहीं, वो मेरी मादाम मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा की है। एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा कि इस आदमी के मुंह पे तमाचा दे मारूं, फिर संभल के बैठ गई, क्योंकि बेइंतहा समझदार खातून थी, और एक लंबा वजाहती बयान मुझ जैसे नाचीज के सामने शुरू किया। कहने लगी कि मैं अब इस उम्र में परफॉर्मर बन गई हूँ। ये ज़माना वो है जब लोग हमें देख सकते हैं, हम स्टेज पे आते हैं और बहुत बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं। अब देखिए, जब आप स्टेज पे आते हैं तो ऐसे नहीं हो सकते कि बिल्कुल साकित खड़े हो जाएं, ऐनक लगा के पढ़ के गाना नजरें उठाए बगैर, अपने सामीन को और हाज़रीन को देखे बगैर गा दें, परफॉर्म ना करें, हिले ना। तो बिल्कुल लोग ये कहेंगे कि इससे बेहतर था कि इतनी बड़ी टिकट क्यों खर्च की, हम क्यों ना घर बैठ के ही रिकॉर्ड पे या टेप पे ये गाना सुन लेते, बल्कि ज्यादा अच्छा शायद सुनाई देता, क्योंकि बिल्कुल करीब था, और वॉल्यूम भी हम खुद एडजस्ट कर लेते। अब उमर मियाँ, हम परफॉर्म करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम जिंदा कैसे हैं, और हमारी आवाज के साथ हमारा पूरा बदन भी शामिल हो, लिबास भी ऐसा हो कि सबकी निगाहें हम पे जम जाएं, और फिर जेवर भी ऐसा हो कि चमक दमक दिखाई दे। मैंने फिर कहा, मैंने कहा,
आशा जी, आप बिल्कुल सही फरमाती हैं, लेकिन ये अंग दुनिया को और बरे-सगीर की गुलकाराओं को सिखाया किसने, बताया किसने? मैडम नूरजहां ने। हँस पड़ीं, कहने लगीं कि अच्छा छोड़िए, आइए आपको उस पहली मुलाकात का किस्सा बताऊँ जब मेरी नूरजहां से मुलाकात हुई। मेरे दोनों कान खड़े हो गए और दिल धड़कना भूल गया कि हाय! मैं किस तारीखी वाक़ये का ज़िक्र अब उस वाक़ये की शाहिद और नाज़िर से सुनने लगा हूँ। मैं ज़िक्र कर रहा था कि आशा जी ने मुझे खुद कहा कि आइए मैं आपको बताऊँ कि मेरी नूरजहां से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई और उस मुलाकात के दौरान क्या हुआ। ये बातें मैंने खुद उनसे सुनी हुई हैं, इसलिए आप में से वो हज़रात जो इनसे इख्तलाफ रखें, वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए ताकि मेरी तसहीह हो जाए। उसके अलावा अपना वीलॉग बनाइए और हमें बताइए कि असल बात आपके मुताबिक क्या थी, ताकि तारीख पढ़ने वाले और रिसर्च करने वालों के लिए 2 मुख्तलिफ ज़ाविये मौजूद हों और वो फ़ैसला खुद करें। आशा जी ने कहा कि मेरे वालिद दीनानाथ मंगेशकर की वफ़ात के बाद खानदान की किफ़ालत की ज़िम्मेदारियाँ लता पे और मुझ पे आ पड़ी, इसलिए कि हम गाती थीं और ज़ाहिर है कि हमने स्टेज पे गाना था, वैसे भी गाना था मगर फ़िल्म एक ऐसा मीडियम था जिसमें पैसे थे। लिहाज़ा हमारे वालिद के दोस्त थे मास्टर विनायक। मास्टर विनायक को शायद आप ना जानते हो, मगर मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, मास्टर विनायक एक बहुत पायनियरिंग किस्म के इंडियन फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। उनकी फ़िल्म साज़ एक इदारा था जिसका नाम था प्राफुल्ला फ़िल्म्स और इनका स्टूडियो था कोल्हापुर में और पुणे में। एक बात आपको और बता दूँ कि मास्टर विनायक वो हैं कि जिनकी बेटी नंदा थीं। नंदा एक मशहूर अदाकारा थीं, थोड़े अरसे के लिए हिंदी सिनेमा में वो एक हीरोइन के तौर पे आईं, मगर उसके बाद रिटायर हो गईं। आप में से जो लोग नंदा को जानते हैं, वो यकीनन ये जानते होंगे कि मास्टर विनायक उनके वालिद थे। बहरतौर मास्टर विनायक ने एक फैसला ये किया कि मैं अपनी अगली फ़िल्म में मास्टर दीनानाथ की बेटियों को किसी न किसी तरह पोजीशन करूं ताकि उनके फिल्मी करियर का आगाज हो सके। इससे पहले लता जी और आशा जी दोनों मराठी सिनेमा में अपनी आवाज दे चुकी थी और जलवागर भी हो चुकी थी, मगर देन मराठी सिनेमा वाज ओनली अ रीजनल सिनेमा और उसमें आप कहाँ आगे कितना जा सकते थे। हिंदी सिनेमा मेन स्ट्रीम सिनेमा था बरसगीर का, इसलिए इन दोनों बच्चियों का डेब्यू करना इन अ लार्ज बैनर बिग स्टार कास्ट इंडियन मूवी बेइंतहा जरूरी था। मास्टर विनायक ने अपनी फिल्म का नाम रखा बड़ी माँ और एक स्क्रिप्ट लिखवाया जो कि उन हालात के मुताबिक बहुत ही मुनासिब था। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जमाना था। 1943 में 1943 में इस फिल्म का पेपर वर्क शुरू हुआ। 1944 में इसकी शूटिंग और गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इससे पहले कि रिकॉर्डिंग शुरू होती या शूटिंग शुरू होती, मास्टर विनायक ने अच्छी तरह देखा कि कौन ऐसी खातून है जो इस फिल्म को कामयाबी की जमानत दे सकती है, कौन सी ऐसी गुलकारा है कि जिसकी आवाज इस फिल्म के गीतों को जावेदानी जिंदगी देगी और मकबूलियत भी ऐसी जो कि आलमगीर होगी। ज्यादा दूर क्या देख रहा था, ये मिड 40s का जमाना था बॉम्बे का। मिड 40s में बॉम्बे में अगर किसी की आवाज गूंज रही थी, किसी का सिक्का चलता था, किसी के नाम की शोहरत थी, तो वो कोई और नहीं, ख्वातीन और हज़रात, मेरी और आपकी मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां थी। चार दांग में पूरे बॉम्बे में उनके गीत गूंजते थे, उनकी फिल्मों के टिकट बिकते थे और माशाल्लाह क्यों ना बिकते। शी वॉज एब्सोल्युटली द रेनिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड of the mid 40s and the late 40s as well, till such time that she decided to move to Karachi, Pakistan. ख़वातीन हज़रात, बड़ी माँ के लिए जो हीरोइन का इंतखाब था वो था मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा का। हीरो थे ईश्वर लाल। इसके अलावा इसी फिल्म में याकूब थे और सितारा देवी थी जो कि जापानीज एजेंट्स बने हुए थे। वर्ल्ड वॉर टू के बाद का ज़माना था और एक टोटली अनबिल्ड रोल्स के लिए लता मंगेशकर और आशा मंगेशकर को लिया गया ताकि इस फिल्म की रोशनी, उसकी ज़िया उन पे भी पड़े और उनका भी हिंदी फिल्म करियर का आगाज हो। मैंने जो आपको तफसील बताई, अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट की सिने हिस्ट्री के अंदर बड़ी माँ रिलीज्ड इन 1944 वो वाहिद फिल्म है जिसमें मलिका तरन्नुम नूरजहां, लताबाई मंगेशकर और आशा भोसले एक साथ मौजूद थीं और इसमें
एक गाना ऐसा है कि जो आशा जी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, माता तेरे चरणों में, और एक गीत ऐसा है जो कि लता जी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। उसका मुख्तलिफ है, माँ तेरे नाम कुछ इस तरह करके गीत है, मुझे वो याद नहीं क्योंकि उसका रिकॉर्ड बहुत कम मैंने सुना है, मगर 4 या 5 गीत ऐसे हैं जो मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां की आवाज में रिकॉर्ड हुए। मेरे ख्याल में बॉम्बे के गीतों में बड़ी माँ के मैडम नूरजहां के गीतों को जो मकाम हासिल है, वो शायद किसी और फिल्म के गीतों को नहीं है। इस फिल्म के मौसीकार थे के दत्ता। के दत्ता उन्हें कहा जाता था, असल में उनका नाम था दत्ता कोरेगांवकर। जो मैडम के साथ उन्होंने गीत गवा दिए हैं, बैठी हूँ तेरी याद का लेकर के सहारा, ओए होए होए, दिया जला के आप बुझाया तेरे काम निराले, वगैरह वगैरह, कयामत की है। अब आइए मुलाकात की तरफ। आशा जी ने कहा कि हम कोल्हापुर में एक स्टूडियो में बैठे थे। हमारी माँ हमें बड़ी बड़ी 9 गज की मराठी साड़ियाँ पहना के स्टूडियो भेजती थी और हमारे लंबे लंबे बालों में कड़वा तेल डाल के हमारी 2-2 चुटियाँ करती थी, क्योंकि इतने बाल थे कि एक चुटिया की वजह से सर पीछे हो जाता था, मगर अगर 2 चुटियाँ हों तो सर में बैलेंस रहता था और हमें दर्द नहीं होता था। ये था बिल्कुल अंदाज इन दोनों बहनों का। स्टूडियो में एक कोने में बैठी थी। उस दिन शूटिंग नहीं थी, उस दिन रिकॉर्डिंग थी कि दत्ता साहब ने बंबई से आई हुई मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड करना था। सब उनके मुंतजिर थे कि पता चला कि भाई स्टूडियो का गेट खुला है और उनकी गाड़ी आ गई है। गाड़ी आके रुकी, हर बंदा देख रहा था। गाड़ी में से कदम निकाला मैडम नूरजहां ने। देखते ही लोगों की आंखें चुंधिया गईं। ये सब उनका कहना था, इसलिए कि गाढ़े नीले रंग का जरी से अटा हुआ एक सूट उन्होंने पहना था और सर पे दुपट्टा लिए हुई थी और ऐसे लग रही थी कि जैसे गाढ़े नीले बादलों में चांद दमक रहा हो। ये मेरी मोहब्बत नहीं, ये उनकी इमानत और सदाकत बोल रही है। खैर, यूं मजे से चलती हुई दाखिल हुई रिकॉर्डिंग रूम की तरफ वाले रास्ते में, तो फिल्म के प्रोड्यूसर मास्टर विनायक ने कहा कि भाई वाह नूरजहां, मेहरबानी, बड़े धन्यवाद, आप आ गई। के दत्ता बैठे आपके मुंतजर हैं, धुन तैयार है, साजिंदे भी तैयार हैं। तो मैडम ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं भी तो तैयार हूँ। आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि वो नूरजहां, ये बच्चियों का परिचय कराना था। मैडम ने मुड़ के देखा, 2 बच्चियां बैठी हुई हैं। मैंने कहा कहने लगे कि ये हमारे मराठी थिएटर के बहुत बड़े गुलकार थे, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, और साथ ही कानों की लौ को छुआ। तो नूरजहां ने भी अदब से अपनी निगाह बदल के उनकी तरफ देखा। ये उनकी बच्चियां हैं, उनका तो देहांत हो गया। मैडम ने प्यार से नजर डाली और कहा, अच्छा, अल्लाह अच्छी किस्मत करे। एकदम से मास्टर विनायक बोले, नूरजहां, ये गाती भी हैं। ये सुन के मैडम ने उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा और कहा, गाती हो? और साथ ही कदम उठा के आगे चली गई। इशारा ये किया कि मेरे पीछे आओ। उसके बाद मैडम ने धुन समझी दत्ता कोरेगांवकर से, माइक पकड़ा और पहली टेक में इस गजब का गीत पूरे का पूरा रिकॉर्ड करा दिया कि उसमें एक अलग एनर्जी महसूस हुई। ये वो पहला दर्स था जो लता मई मंगेशकर को और आशा मंगेशकर को कसूर की नूरजहां ने दिया कि गाती हो तो आओ सुनो कि गाया कैसे जाता है। ख्वातीन हजरात, यह किस्सा अगर गलत है तो मैं जिम्मेदार हूं। ये वो वाहिद फिल्म है जहां पे ये तीनों मिली, और मेरे ख्याल में जैसे अनमिट नकूश आशा जी और लता जी के जहनों पे मैडम ने छोड़े हैं, वो वही जहन कबूल कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में और आपने भी कई दफा मैडम की मौजूदगी में लता जी को देखा होगा। सिर्फ एक बात समझ आई, जीनियस को जीनियस पहचानता है। हीरे की दमक का अंदाजा हीरे की दमक को ही हो सकता है जो वो रोशनी निकालता है, और सिर्फ इज्जतदार दूसरों को इज्जत दे सकता है। जिसका जिसकी प्लेट इज्जत से खाली है, उसने इज्जत का लुकमा किसी और को मोहब्बत से खाक खिलाना है। ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए दुआएं भी हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी हैं, मगर आप में से वो लोग भी हैं जो साफ ये बताते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو عزت جیسی دولت سے عاری رکھا ہے. اس لیے آپ جب بھی منہ کھولیں گے کسی کے لیے ذلت آمیز الفاظ استعمال کریں گے، کیونکہ آپ کی جھولیوں میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں. اگر عزت کرنی سیکھنی ہے، عزت دینی سیکھنی ہے، تو عزت پانے کی کوشش بھی کیجیے، جیسی کہ ان بڑی خواتین کے آپس میں رابطے میں نظر آتی ہیں. ہر ملاقات میں لتا بائی نور جہاں کو دیدی دیدی کہتے ان کا منہ سوکھتا تھا. دیدی کا مطلب ہے بڑی بہن، جس کی عزت ماں جیسی کی جائے، اور خود میڈم نور جہاں لتو میری لتو لتو کہتے ان کا دل خوش ہوتا تھا، جی ٹھنڈا ہوتا تھا. میرے خیال میں یہ قصہ آج یہیں موقوف کرتے ہیں. مجھے تو موقع چاہیے یہ تمام ذکر آپ کے سامنے کرنے کا. اگلی ایپیسوڈ میں اسی سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے.